ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر اس کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک ہے شبہ ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اسی جیسا ایک سورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے گواہوں کو بھی لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 14 صدیوں سے آج تک موجود ہے، لیکن اس کا جواب نہ ماضی میں تھا، نہ حال میں ہے، اور نہ مستقبل میں لایا جا سکتا۔ قرآن مجید معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب اخلاق بھی ہے۔ قرآن مجید اگر دیکھا جائے تو وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا لکھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، اور جس کا سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید وہ پہلے بیکرا ہے کہ جس کے لیے ارشاد ملتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں کائنات کی ہر خوش قطر موجود ہے اور اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے جو باطہارت ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو باوضو ہو کر کے کریں تاکہ گناہ سے محفوظ رہے۔ اگر بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور اس کے ہاتھ قرآن مجید کے حروف سے مس ہو جائیں تو یقیناً وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ بحر بیکرا ہے، وہ علم و فضیلت کا سمندر ہے کہ جس میں ہر طرح کے قوانین فضائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی جو خاصیات ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن مجید کے سلسلے سے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اپنے علم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر دانشور اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے۔ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنے فن کے لحاظ سے اس سے استفادہ کر لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نحوی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے نحو کی باتیں نظر آتی ہیں۔ علم صرف کا جاننے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے صرفی قوانین نظر آتے ہیں۔ علم فقہ کا جاننے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے احکام خداوندی نظر آتے ہیں۔ علم اصول فقہ کا جاننے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے علم اصول کے قوانین نظر آتے ہیں۔ علم کلام کا جاننے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے کلامی باتیں نظر آتی ہیں۔ علم نجوم کا جاننے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے نجوم سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جب اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا اگر کسی اور فن کا ماہر ہوتا ہے، مثلا علم حساب کا جاننے والا ہے تو اسے علم حساب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ غرض کی ہر انسان اپنی مہارت کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق، اپنی
मुताबिक इस किताब से फायदा उठाता है। नहली को सर्फी नहली बातें नजर आती हैं, इल्म सर्फ के जानने वाले को सर्फी कवानीन नजर आते हैं, उसूल के जानने वालों को उसूल की बातें नजर आती हैं, इल्म फिक्र के जानने वाले को फिक्र कवानीन नजर आते हैं। गरज की हर इंसान का अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने बुरे मकसूद को पा लेना इस बात की दलील है ये इंसान का कलाम नहीं है बल्कि खालिक इंसान का कलाम है। इसी किताब में जो किताब मुअज्जा है, मुअज्जा खालिदा है, हमेशा रहने वाली किताब है, फिरौन के गर्क होने का तज़किरा मौजूद है। फिरौन उसी रास्ते पे चला जिस पर जनाब मूसा का लश्कर चला था। जनाब मूसा ने दरिया नील में असा के जरिए से रास्ता बनाया, अपने लश्कर को लेकर के आप साहिल के किनारे पहुंच गए, दरिया से पार हो गए। लेकिन उसी रास्ते पर जब फिरौन का लश्कर चला जिसका नुमाइंदा खुद फिरौन था, तो दरियाए नील में गर्क हो गया। और जब दरियाए नील में गर्क हो गया तो होना ये चाहिए था कि उसकी लाश का पता न चलता, इसलिए कि समंदर में, दरिया में तरह तरह के जानवर होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं जो इंसान को लोग में अजर बना लेती हैं। तो आखिर ताज्जुब की बात है कि फिरौन की लाश कैसे साहिल के किनारे मिली। लम्हे फिक्रिया है, सोचने का मकाम है। उसकी वजह यह है कि खालिक कायनात ने पहले ही वादा कर दिया था, अल-यौम ननज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम तुम्हारे बदन को नजात देंगे, तुम्हारे बदन को सालिम रखेंगे। अल्लाह ने चूंकि वादा किया था कि मैं तुम्हारे बदन को नजात दूंगा, लिहाजा फिरौन की लाश साहिल के किनारे मिली, दरिया नील के किनारे मिली। और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। तो खालिक कायनात ने वादा किया, कुरान मजीद गैब की खबरें देता है। 1400 साल पहले कुरान मजीद ने कहा था कि हम तुम्हारे बदन को सालिम रखेंगे। आज भी फिरौन की लाश म्यूजियम में मौजूद है। मौलाना तारिक जलील ने बड़ी अजीबोगरीब बात बयान की है। कहा फिरौन की लाश की खासियत यह है कि उसके बदन का गोश्त बढ़ता रहता है, इजाफा होता रहता है। जबकि इंसान मर गया, मुर्दा हो गया, तो उसके बदन के गोश्त के बढ़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी फिरौन के बदन की खासियत यह है कि उसके बदन का गोश्त बढ़ता रहता है। और उसी म्यूजियम में चूहे पले हुए हैं। साल में एक मौका आता है, उन चूहों को छोड़ दिया जाता है। वो चूहे आते हैं और आने के बाद फिरौन की लाश पर उभरे हुए गोश्त को खा जाते हैं। और उसके बाद उसकी लाश को मुंगिया करके फिर म्यूजियम में रख दी जाती है। अजीबोगरीब बात है, वो म्यूजियम का दावा करने वाला, अल्लाह होने का दावा करने वाला, और उसकी लाश का ये आलम है कि चूहे उसके गोश्त खा जाते हैं और मुंगिया के वो लाश रख दी जाती है। तो अल्लाह ने जो वादा किया था कि हम इसकी लाश को बाकी रखेंगे, तो आज भी बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद का दावा सच्चा है। अब कुरान मजीद ने जो कुछ कुरान मजीद ने कहा है वो हक है, सच है, वो होकर के रहेगा। चाहे वो नमाज से मुताल्लिक हो, चाहे रोज़े से मुताल्लिक हो, चाहे हज से मुताल्लिक हो, चाहे हलाल से मुताल्लिक हो, चाहे हराम से मुताल्लिक हो, चाहे जन्नत से मुताल्लिक हो, चाहे जहन्नम से मुताल्लिक हो। कितने भी कवानीन कुरान मजीद में आए हैं, कितने भी अहकाम मालिक कायनात ने कुरान में नाज़िल फरमाए हैं, वो सब सच है, वो बरहक है, वो होके रहेगा। कुरान मजीद ने कहा नमाज से मुताल्लिक, हमारे यहाँ नमाज में गफलत पाई जाती है, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कभी सुबह पढ़ लिया कभी शाम को पढ़ लिया, बेटाइम पढ़ते रहते हैं, बेवक्त पढ़ते रहते हैं। उसके लिए कुरान मजीद ने क्या कहा, वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज को सुस्ती और काहिली से पढ़ते हैं। वैल क्या चीज है, तफसीर उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। वैल जहन्नम का एक कुआं है जिसमें सांप, बिच्छू और तरह तरह के मूली जानवर मौजूद हैं। इंसान को उसमें डाल दिया जाएगा। कौन सा इंसान डाला जाएगा? वो इंसान
जो नमाज को पढ़ता है लेकिन नमाज को सुस्ती से पढ़ता है, बजाय 12:30 बजे के 5 बजे पढ़ लेता है, कभी 4 बजे पढ़ लेता है, ऐसे के लिए हुक्म दिया गया कि ये जहन्नम के निचले कुएं में होगा। तो अल्लाह अकबर, जो नमाज ही न पढ़ता हो, जानबूझ करके नमाज को बोल कर जाता हो, उसका क्या आलम होगा। नमाज से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की दूसरी आयत मौजूद है, अहले जहन्नम से सवाल किया जाएगा, मा सलकाकुम फी सक़र, कौन सी शय तुमको जहन्नम में लाई। वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये कुरान मजीद है, कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, शायर का कौल नहीं है, कलाम खुदा है, साफ साफ ऐलान मौजूद है, लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाज से गाफिल रहा करते थे। और अहादीस में भी नमाज की बड़ी अहमियत वाली हुई है। आप देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सलाम का जमाना है, आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में आपने हुक्म दिया अहले खाना को जमा किया जाए। सब जब जमा हो गए, इमाम के पास इकट्ठा हो गए, आ गए। उसके बाद इमाम ने फरमाया, लन तनाल शफाअतुना मन इस्तखफ़ बिस्सलाह, जो नमाज को हल्का समझे उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी। और कोई कायनात में है जो ये कह सके कि बगैर शफाअत अहले बैत के हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इमाम हमारी शफाअत करें तो नमाज से गफलत नहीं करना चाहिए। नमाज के मुताबिक यहाँ तक हदीस पैगंबर आवाज दे रही है। पैगंबर ने फरमाया, ला तुसल्लिमू अला यहूद उम्मती, मेरे उम्मत के यहूदियों पे सलाम न करो। क़ील मन हुम या रसूलल्लाह, सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत के यहूदी कौन लोग हैं। तो पैगंबर ने फरमाया, मन समिअ अज़ान वलम यहदुर जमाअ, जो शख्स आवाज अज़ान को सुने लेकिन जमात में हाजिर न हो। यह है नमाज की अहमियत, जमात से पढ़ने की अहमियत। तो नमाज से मुताल्लिक़ बहुत सी रवायात मौजूद हैं, कुरान मजीद की आयतें मौजूद हैं। 18वें पारे में इरशाद होता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यक़ीनन वो मोमिनीन कामयाब हैं जो नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं, जो नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं। क्या मतलब, यानी पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, अपने पूरे वजूद से अल्लाह की तरफ रुख किए हुए होते हैं। अगर ऐसे नमाज पढ़ता है तो कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, ऐसे मोमिनीन कामयाब हैं। इसका मतलब यह है कि हर नमाज नमाज नहीं है, बल्कि नमाज वही है जो खुशू के साथ पढ़ी जाए, खुशू के साथ पढ़ी जाए। नमाज को दिल लगा के पढ़ना कमाल है, नमाज से जिंदगी करना कमाल नहीं है। दिल लगा के पढ़ेगा तो नमाज कबूल होगी, और फिर हमारी और गैरों की नमाज में भी फर्क होना चाहिए। इसलिए कि हम किसी ऐसे वैसे के मानने वाले नहीं हैं जो नमाज से गाफिल थे, जो नमाज से फरार करते थे, बल्कि हम उसके मानने वाले हैं कि जिसको सैयदुल साजिदीन कहा जाता है, जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि जिसके पैर में अगर कील छूट जाए और हालत नमाज में निकाल दिया जाए तो एहसास तकलीफ न हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले नमाज यकीनन मोमिन की मेराज है। लेकिन ये नमाज भी जब मोहब्बत अहले बैत के साथ अंजाम दी जाए, इसलिए कि इमाम की मोहब्बत भी वाजिब है। बगैर मोहब्बत अहले बैत के, बगैर इमाम की मोहब्बत के अगर कोई नमाज पढ़े तो नमाज टक्कर कहीं आ सकती है, नमाज नहीं हो सकती। कायदा मौजूद है, तो रब्बुल अशिया व अज़दाजहा, कायनात की हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। दिन को कैसे पहचाना, कहा रात के जरिए से, रात को कैसे पहचाना, दिन के जरिए से। स्याही को कैसे पहचाना, सफेदी के जरिए से।
है जिसमें बहुत ज्यादा अफराद जमा हो गए हो। बहुत कम ऐसे अफराद मिलते हैं जिसमें 2 या 4 की फतेह जमा हो जाए। अगर कोई शजाअत के मैदान में यकता रोजगार है तो फिर सखावत के मैदान में नजर नहीं आता। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है तो बहुत बड़ा मौलवी नजर नहीं आता। अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, दानिश्वर है, तो शजाअत के मैदान में नजर नहीं आता। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत कम अफराद हैं जिसमें 2-4 की फतेह पाई जाती हो, 2-4 खुसूसियात पाई जाती हो। लेकिन मौलाए कायनात की जात वो जात है कि आपको जिस रूप से देखा जाए आपकी जात मुकम्मल नजर आती है। हमने आपको इबादत के मैदान में देखा तो यकताए रोजगार पाया, सियादत के मैदान में देखा तो बेमिसाल पाया, क़यादत के मैदान में देखा तो सबसे बड़ा कायद नजर आए। आपको इबादत के मैदान में देखा तो सबसे बड़े इबादत गुजार नजर आए। आपको रियाजत के मैदान में देखा तो सबसे बड़े मजदूर नजर आए। आपको सखावत के मैदान में देखा तो सबसे बड़े सफीर नजर आए। आपको शराफत के मैदान में देखा तो सबसे बड़े शरीफ नजर आए। आपको जिस रूप से देखा, जिस जात के निगाह से देखा, आपकी जात मुनफरिद नजर आती है। चाहे वो इबादत का मैदान हो, चाहे रियादत का मैदान हो, चाहे सखावत का मैदान हो, चाहे क़यादत का मैदान हो, चाहे सियादत का मैदान हो, चाहे इबादत का मैदान हो, हर मैदान में आपकी जात मुनफरिद नजर आती है। आपको हमने सखावत के मैदान में देखा तो देखा कि मैदान जंग है, सरकट कट्टन के गिर रहे हैं, गोले भड़क रहे हैं। मैदान जंग है, गोले भड़क रहे हैं, जंग का बाजार गर्म है और बड़ी तेजी से हमला हो रहा है। एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं, सर कट के गिर रहे हैं। ऐसे माहौल में एक दुश्मन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के कहता है, या अली, मैंने तो सुना है कि आप बड़े सती हैं, लेकिन मैं तो उस वक्त समझूंगा कि जब अपनी तलवार मेरे हवाले कर दे। मौलाए कायनात ने अपनी तलवार दुश्मन के हवाले कर दी है। कायनात में कोई ऐसा बशर जो इस मौके पर अपनी तलवार को दुश्मन के हवाले कर दे? कायनात में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मौलाए कायनात ने मैदान जंग में अपनी तलवार को दुश्मन के हवाले कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, बाद में जब एक शख्स ने सवाल कर दिया, या अली, आपने ये क्यों किया? आपने बहुत गलत किया कि मैदान जंग में आपने अपनी तलवार दुश्मन के हवाले कर दी। अगर वो कत्ल कर देता तो क्या होता? मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नादान तू कैसी बातें करता है? वो कैसे मुझको कत्ल कर देता? कहा उसके हाथ में असलहा था, हथियार था, वो आप पर वार करता, आप खत्म हो जाते। मौलाए कायनात ने कहा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए कि अगर मेरी तलवार उसके हाथ में थी तो उसका दिल मेरे हाथ में था। और आप देखें कि मौलाए कायनात जो हर मैदान में मुनफरिद नजर आते हैं, यकताए रोजगार नजर आते हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र है। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद कम है और उस मौके पर कुरान मजीद कहता है कि मोमिनीन की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। कुरान मजीद में है, पैगंबर की ज़ुबानी कुरान में कहता है कि पैगंबर ने कहा, अगर खालिक कायनात तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेज दे तो क्या तुम्हारी मदद के लिए काफी नहीं है? और फिर पैगंबर ने कहा, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तक़वा इख्तियार करोगे तो मालिक कायनात तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजेगा। 5000 फरिश्ते मालिक कायनात मुसलमानों की मदद के लिए भेजेगा। अब जैसे ही ये खबर मुसलमानों तक पहुंची, मुसलमान खुश हो गए कि फरिश्ते हमारी मदद के लिए आएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक वो भी था जिसकी त्योरियों पर बल आ गए कि मेरे होते हुए और फरिश्ते मदद के लिए आ जाए, और उसके त्योरियों पर बल आ गए। मालिक कायनात ने कहा, अगर तुम्हारी त्योरियों
तहरीर में नहीं ला सकते। और मौलाए कायनात के बाद इमाम हुसैन मुश्तबा, उनके बाद हुसैन शहीद करबला, गरज के हमारे 12 इमाम हैं। हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, लेकिन आखिरी इमाम पर जब दुश्मनों ने निगाह जमाई और इमाम को कत्ल करना चाहा तो मालिक कायनात ने गैबत का इंतजाम कर दिया। और उस वक्त इमाम के 4 नायब थे। जब गैबत सुगरा का आगाज हुआ तो इमाम के 4 नायब गुजरे हैं। ये वो नायबीन थे, बच्चों को बताने के लिए आप करता चलूं, 4 नायब का इंतजाम किया गया जो सफारत का काम कर रहे थे, यानी इमाम से अहकाम लेकर के मोमिनीन तक पहुंचाते थे और फिर मोमिनीन की बातों को, मोमिनीन की अर्जियों को इमाम तक पहुंचाते थे। ये सफारत का काम हो रहा था। और आखिरी नायब हुसैन इब्न रव हैं, जिनका मजार आज भी बगदाद में मौजूद है, और 4 नायबीन के मजार मौजूद हैं जिनकी ज़ियारत के लिए आज भी लोग जाते हैं, जिनको नुवाब अरबा के नाम से याद किया जाता है। तो नियाबत की 2 किस्में हैं, नियाबत खासा, नियाबत आम्मा। नियाबत खासा 4 नायबीन हैं, जिनके आखिरी नायब हुसैन इब्न रव हैं, और उसके बाद नियाबत खासा का सिलसिला खत्म हो गया, नियाबत आम्मा का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आज नायब इमाम के सिलसिले से जब गुफ्तगू होती है तो बात सरफिरे जाहिल अफराद लान तान करते हैं, तानो तशनी करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, जबकि मर्जा की तौहीन करना, मुत्तहिद की तौहीन करना, फकीह की तौहीन करना, दर हकीकत पैगंबर की तौहीन करना है, इमाम की तौहीन करना है। इसलिए कि इमाम ने हुक्म दिया है, लिहाजा हमको तौकीर करना चाहिए, हमको इमाम की इज्जत करना चाहिए, उसी तरीके से नायबा इमाम की भी इज्जत करना चाहिए। इसलिए कि इस जमाने में जबकि दुश्मनाने अहले बैत ने और की मीडिया ने यकीनन ये ठान लिया है कि किसी तरीके से शियत को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, लिहाजा इनको नाबूद किया जाए। और नाबूद करने के लिए उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान कोई चीज फैसला किया, का तो इनकी आम चीजें पाई जाती हैं, आम मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। शियों के जो तहरीक पाई जाती है, जो जज्बात पाए जाते हैं कुर्बानी के, यकीनन उसकी 2 ही वजह है, एक तो मरजइयत है और दूसरे आजादारी है। मरजइयत इत्तेहाद का सबब है, उनकी एक आवाज पे सारी कायनात के मुसलमान शिया हजरात इकट्ठा हो जाते हैं और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजादारी भी वो है कि जिसकी वजह से इनके अंदर जज्बा पाया जाता है, जोश पाया जाता है, कुर्बानी का जज्बा। क्यों? इसलिए कि मजलिस में ये जितने अहले बैत करते हैं, करबला की दास्तान दोहराते हैं, करबला के वाक़यात का तज़किरा होता है, इसकी वजह से इनकी रगों में हरारत पाई जाती है, इनके यहाँ तहरीक पाई जाती है, हरकत पाई जाती है। लिहाजा दोनों को खत्म करना चाहिए। दोनों को खत्म कर नहीं सकते थे, न तो मरज़इयत को खत्म कर सकते हैं, न आज़ादारी को खत्म कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक मोटी रकम इसको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और शियों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए मुख्तस कर दी। किताबें मौजूद हैं, किताबों में आप पढ़ सकते हैं कि उस वक्त जब माइकल ने कहा था कि इनके यहाँ 2 चीजें बहुत अहम हैं, एक है मरज़इयत, दूसरा है आज़ादारी, लिहाजा दोनों का खात्मा होना चाहिए। या अगर खात्मा नहीं कर सकते तो इनमें इख्तिलाफ पैदा किया जाए, इनमें जुदाई पैदा कर दी जाए और ये आपस में खुद दरगीर हो जाए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ तानो तशनी करने लगे। और यही हो रहा है आज जो मरज़इयत के खिलाफ बोला जा रहा है, उसकी वजह यही है कि दुश्मन की साजिश का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा हर शिया के लिए लम्हे फिक्रिया है कि वो किधर जा रहा है। इसलिए कि अगर हमने मुज्तहिद को माना है, फकीह को माना है, तो अपनी तरफ से नहीं माना है, बल्कि हमने देखा कि जब करबला में ये फकीह अहले बैत मौजूद था और नायब बना करके जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन ने अपने तरफ से भेजा था। अब कूफा में जाने के बाद अगर जनाब मुस्लिम के हाथ में बैत
इमाम के हाथ में बैत है, लेकिन हाथ मुस्लिम का हाथ है और हकीकतन इमाम के हाथ में बैत हो रही है। इसी तरीके से अगर कोई आज के नायब इमाम के हाथ में बैत करता है तो यकीनन वो इमाम के हाथ में बैत करता है और इमाम ने अपना नायब मुकर्रर किया है। क्योंकि नियाबती लोग इसमें है, नियाबत खासा, नियाबत आम्मा, ये नियाबत आम्मा का सिलसिला है। और इस सिलसिले में मैं बच्चों को बताता चलूं, ये तकलीफ कोई नई चीज नहीं है, तकलीफ बहुत पुरानी चीज है। और कायनात में जहां जहां इंसान बसते हैं हर जगह तकलीफ का सिलसिला जारी है। इंसान की जिंदगी का कोई शोभा ऐसा नहीं है कि इसमें तकलीफ न पाई जाती हो। इंसान बीमार पड़ गया, इलाज के लिए निकला, डॉक्टर के पास पहुंचा। अब ये डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो कुछ कहेगा उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि डॉक्टर की बात का मानना ये तकलीफ है या नहीं है? इंजीनियर है, अगर आपने उसको बुला लिया, मकान का नक्शा बना दिया और मकान बनाने लगा, अब जैसे वो कहेगा आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि वो इंजीनियर है, उस फन का माहिर है। अगर अदालत से मुताबिक कोई काम है तो वकील आपका केस देखेगा। अब वकील
शख्स दुनियावी तालीम हासिल करते हुए पीएचडी कर ले तो आप उसकी बातों पे अमल करते हैं, उसकी कही बातों पे सद अमल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। तो वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी काला रसूलुल्लाह, काला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, काला जाफर अलैहिस्सलाम, जिसने पूरी जिंदगी इमाम सादिक ने ये कहा, इमाम बाकर ने ये कहा, इमाम हुसैन ने ये कहा, इमाम मुस्तफा ने ये कहा, पूरी जिंदगी गुजार देता है, आखिर उसकी बात पे हम अमल क्यों ना करें? उसकी बात पे भी हमें अमल करना चाहिए। और यकीनन खुदा की कसम अगर देखा जाए तो ये मर्दयत वो चीज है कि जिसकी वजह से दुश्मन आज कांप रहा है। ईरान का इकरार गवाह है कि अगर दुश्मन डरा है, वो जिसको अबर कुदरत कहा जाता है, जिसको अपनी ताकत पे नाज है, अपनी ताकत पे गुरूर है, अगर उसको जेल करने वाला कोई है तो यही मर्दयत है। लिहाजा मर्दयत पे कदर करना चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद बस तूल न देते हुए मैं मकसद की तरफ पहुंचना चाहता हूं। आज हम फर्श अदा पे बैठे हुए हैं ताकि हम यहां से कुछ ले करके जाएं। और यकीनन अगर कोई इंसान इस गरज से आए कि सभा के साथ साथ हमको कुछ इल्मी फायदा भी होना चाहिए, तो ऐसे अफराद को अगर बुलाया जाए कि जो फायदा पहुंचा सकते हैं तो यकीनन वो फायदा भी हासिल होगा। और ऐसे अफराद को बुलाना चाहिए, इसलिए कि अगर वो अफराद नंबरों पे आएंगे कि जिनको MIS ने तैयार किया है तो वो अपने मकसद को बरवे कार लाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस जमाने में पहचानना भी जरूरी है कि कौन उलमाए सू में है और कौन उलमाए खैर पे है। लिहाजा ऐसे अफराद को दावत दी जाए कि जो सही बयान दे सके। आप करबला में देखें तो इमाम ने एक फकीह अहले बैत को, एक फकीह को नामा लिखा था और बुलाया था, तो फकीह का इतना मर्तबा है कि इमाम ने किसी और को खत नहीं लिखा बल्कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिख करके बुलाया है। और वो काफिला जो 11 मुहर्रम को करबला से रवाना हुआ था, अजीजों को मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ शाम के जिंदान में पहुंच चुका है। लेकिन अजीजों जो काफिला करबला से रवाना होने वाला था, उससे पहले की जो शब है जिसे हम शाम गरीबा कहते हैं, जब खैमों में आग लगा दी गई थी और ख़याम हुसैनी जल रहे थे, एक खैमा जला, बीबियां दूसरे खैमे में पहुंची, दूसरा खैमा जला, तीसरे खैमे में पहुंची, तीसरा खैमा जला, चौथे में पहुंची, यके बाद निकले, सारे खैमे जलते रहे और सबसे आखिर में सिर्फ एक खैमा बचा कि जिसमें इमाम सज्जाद मौजूद थे। बीबियां उस खैमे में पहुंची, शहजादी ने सवाल किया था, बेटा सैयद सज्जाद, ये
इमाम ने अपनी फूफी को देखा कि बैठ करके नमाज पढ़ रही है, सवाल कर लिया, ऐ बेटा सवाल कर लिया, आखिर बैठकर नमाज पढ़ने की क्या वजह है? बाप ने फरमाया, बेटा सलीता सज्जाद, जालिम की तरफ से खाना और पानी इतना कम आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ और भूखी रह जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खड़े होकर के नमाज पढ़ सकूँ। अज़ादारो, और ये कायद खाना है कि जिसमें एक नन्ही सी बच्ची भी है, 4 साल बच्ची भी है, कि शाम का वक्त जब होता है और परिंदों को अपने आशियानों की तरफ जाते हुए देखती है तो बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फूफी जवाब देती है, बेटा अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। तो सकीना तरफ से कहती थी, फूफी अम्मा अरे ये तो अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, क्या हमें अपने वतन जाना नसीब न होगा? अज़ादारो, कैद खाना शाम है। रिवायत बताती है कि जनाब सकीना सो रही थी, आलम